નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારા વિશેષ કાર્યક્રમ આપણું હેલ્થમાં. હું છું આનંદ બારોટ અને આપ મારી સાથે જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. દર્શક મિત્રો, જેમ રોજ વાત કરીએ છીએ એમ આજે પણ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે લઈને આવ્યા છે સ્વાસ્થ્યની વાત. સાથે સાથે કહી શકાય છે કે અમારા જે ડિરેક્ટર છે અને અમારા જે એમડી છે, બંને જે સાથે મળીને આ પ્રોગ્રામનું જે આખું ઘડતર કરેલું છે એનું સ્વાસ્થ્યને લઈને, તો અમારો જે ઉદ્દેશ છે એ ઉદ્દેશ દરેકનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એના માટે અમે અહીંયા કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. તો આપને પણ અમારો જે પ્રયાસ છે ખૂબ સારી રીતે આપે વધાવી લીધો છે, એ બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, આજનો વિષય જે છે આપણે જોવા જઈએ છીએ તો હૃદયરોગ છે. હૃદયરોગનો હુમલો છે અને હૃદયરોગના હુમલાની અંદર કેવી રીતે કરવામાં આવતી હોય છે સારવાર, આ ઘણી બધી વાતો લઈને આજે અમે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવાના છે. આજના આપણા જે વિષયના નિષ્ણાત અને કહી શકાય એવા ડૉક્ટર છે, જે આપણને હૃદયરોગ વિશે સારી માહિતી આપશે. સાથે સાથે કહી શકાય છે કે એમને ઘણા બધા પેશન્ટોને સાજા પણ કર્યા છે અને હૃદયરોગની અંદર શું શું વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું અને હૃદયરોગની અંદર કેવી રીતે આ રોગ આગળ ન વધે અથવા તો આ રોગ ન થાય એના માટેની શું શું કાળજી લેવી, ઘણી બધી બાબતો આજ અમે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આપની સમક્ષ લઈને આવ્યા છીએ. તો આજે ડૉક્ટર મુકેશ આપણને ઘણી બધી વાતોની માહિતી આપશે. ડૉક્ટર મુકેશ દ્વારા જે માહિતી આપવામાં આવશે હૃદયરોગને લગતી, ચોક્કસ કહી શકાય છે કે એની ઘણી બધી બાબતો એવી પણ છે કે જે હજુ આપણે જાણતા નથી. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ માહિતી અમે આપના સુધી પહોંચાડી શકીએ. સાથે સાથે અમારો પ્રયત્ન એવો પણ હોય છે કે આપ સ્વસ્થ રહો અને આપ અને આપના પરિવાર સાથે ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરી શકો. એટલા જ માટે અમે આખો આ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો છે. દર્શક મિત્રો, જ્યારે વાત કરવા જઈએ છીએ હૃદયરોગની, ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે હૃદયરોગના ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે. હૃદયરોગની અંદર હુમલા પણ આવતા હોય છે, જેને આપણે એટેક કહીએ છીએ. એટેકના પણ ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે. માઇનર એટેક હોય છે, મેજર એટેક હોય છે, સિવિયર એટેક હોય છે, એટલે કે ઘણા બધા પ્રકારના એટેક પણ હોય છે. કેવા પ્રકારના એટેક્સ આવે છે અને એટેક્સની અંદર કેવી રીતે પ્રાથમિક સારવાર આપી, કેવી રીતે હોસ્પિટલાઇઝ કરવા વ્યક્તિને અને પછી આગળ કેવી રીતે ડૉક્ટર સાહેબ પ્રક્રિયા કરતા હોય છે, ઘણી બધી વાતો આજે અમે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી આપની સમક્ષ લઈને આવી રહ્યા છીએ. દર્શક મિત્રો, આપ જાણો છો એ રીતે કે હૃદય એ શરીરનું ખૂબ જ મહત્ત્વનું અંગ છે અને સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે હૃદયથી બધી જ ક્રિયાઓ ચાલતી હોય છે. એટલે કે હૃદય આપણા શરીરની અંદર, શરીરના દરેક ભાગની અંદર લોહી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. એટલે કે પંપ સ્ટેશનનું કામ જ્યારે આપણું હૃદય કરતું હોય ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે હૃદયની સાવચેતી અને કાળજી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આજના હેક્ટિક જમાનાની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 3 બાબતોનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જરૂર છે. સૌથી પહેલું ધ્યાન છે એ આપણી ખાણીપીણી ઉપર રાખવું જરૂરી છે. આજનો જે જમાનો છે ત્યારે લોકો જે બહાર ખાવાના શોખીન થઈ ગયા છે અને બહાર ખાવા માટે જે લોકો આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી લાંબી લાઈનોમાં અને કતારોમાં બેસીને પણ બહાર ખાવા માટે જતા હોય છે, ત્યારે કહી શકાય છે કે બહારના જે ફૂડ છે કે જંક ફૂડ છે એ કેટલા હાઇજેન છે તો આપણે જાણતા નથી. પણ હા, ચોક્કસ કહી શકાય કે એના દ્વારા કેવું નુકસાન થાય છે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ. સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે જ્યારે આપણે જ્યારે બહારની વાત કરતા હોય ત્યારે ઘણી બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે. ત્યારે મારી સાથે આજે કહી શકાય છે કે જ્યારે બહાર ખાવાનું, બીજી વસ્તુ છે એક્સરસાઇઝ. અત્યારના જમાનાની અંદર આપણે એક્સરસાઇઝ સાવ ભૂલી ગયા છીએ. એક્સરસાઇઝમાં આપણે કંઈ જ કરતા નથી. અને ત્રીજી વસ્તુ છે જે જીવનશૈલી બદલાઈ ગઈ છે. આજનો યુવાન છે, આજના કોઈ પણ વ્યક્તિ છે જે મોબાઈલને એડિક્ટેડ થયા છે. ઘણી બધી બાબતો જે હૃદયરોગને લગતી હોય છે. ત્યારે આજે મારી સાથે ડૉક્ટર मुकेश जोड़े गया है. मुकेश जी, स्वागत है केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से आपका. अभी का जो जनरेशन है, कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से ये सब चल रहा है इसमें जो हार्ट पेशेंट है वो बहुत सारे बढ़ चुके हैं. मुकेश जी, जिस तरह से हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे एक एमडी फिजिशियन के हिसाब से आप केटीवी न्यूज़ गुजराती के दर्शक मित्रों को? जी नमस्कार। नमस्कार जी सॉरी, आपका वॉइस जो है वो बहुत स्लो आ रहा है मेरे पास। जी डॉक्टर मैं साहब, सुन नहीं पा रहा हूँ अभी आपको। जो हार्ट की डिसीज हो रही है और जिस तरह के हार्ट डिसीज बहुत बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? बेसिकली बराबर है। हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। ओके. आप सही बोल रहे हैं। हार्ट डिजीज जो है गए एक डिकेड में अपन देखें तो हार्ट डिजीज का प्रेजेंटेशन जो है अभी 4th और 5th डिकेड में ज्यादा प्रेजेंटेशन हो रहा है। लोग जो 40 से ऊपर के एज ग्रुप है वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। और उसका मेन रीजन जो है वो लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है गए 10 वर्ष और उससे ज्यादा में। बेसिकली जो हार्ट डिजीज है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। एंड लाइफस्टाइल
as technology advancement, sedentary lifestyle, addictions, diabetes, blood pressure, ये सभी रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस हार्ट डिजीज के लिए, एंड जो कि ये रिस्क फैक्टर अभी इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा होने लग गए बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। मुकेश जी, किस तरह के जो प्रिकॉशंस है वो रखने चाहिए, और दूसरी बात कि जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि जो हार्ट डिजीज़ हो जाते तो उसके बाद में कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है और किस तरह को हार्ट को क्योर किया जाता है। बराबर। हार्ट डिजीज किसी भी पेशेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। फर्स्ट अप्रोच होता है कि आप अपना प्रिवेंशन, एंड सेकेंड अप्रोच होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड एंड क्योर एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन इन सेंस वी हैव टू कंट्रोल आवर लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स विच आर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए। और सेकंड जो अर्ली डायग्नोसिस, दैट मीन्स पेशेंट्स को सिम्टम्स जैसे चलते वक्त छाती में दर्द होना, बैठे बैठे दर्द 20 से 25 मिनट से ज्यादा होना, और चक्कर आना, सांस में तकलीफ होना, नींद में अचानक उठ के एयर हंगर होना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हार्ट अटैक और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है। सो इन सिम्टम्स, जब कभी भी पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और रूटीन इन्वेस्टिगेशन लाइक ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन्स, ये सारे ब्लड टेस्ट, टीएमटी, ये सब ब्लड टेस्ट करा के अपनी डिजीज को डायग्नोज कराएं। और वंस इट इज डायग्नोज्ड तो उसके बाद में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अगर डॉक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक रिजल्ट आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्लान आउट होता है। विवेक जी। जी 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 जी। और दूसरी एक बात है कि एक बार जब ये हमारा डायग्नोस हो जाता है और कहीं पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनको हार्ट डिजीज़ है, तो उसके बाद में डॉक्टर मुकेश किस तरह की वो ट्रीटमेंट दी जाती है, किस तरह का डॉक्टर साहब जो होते हैं, आप लोग जो होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं और किस तरह को हार्ट को क्योर करते हैं। इफ सपोज पेशेंट्स जो नॉन इन्वेजिव, हम जिनको नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टूल्स जो है टीएमटी को, अगर इन सभी टूल्स में अगर पेशेंट्स को कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलती है तो उसके बेसिस पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लाइक कोरोनरी एंजियोग्राफी वो प्लान आउट करते हैं। और उस कोरोनरी एंजियोग्राफी एक तरीके का कैथेटराइज मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट्स को एडमिट होके अपने हाथ या पैर की नली से हम लोग वायर के थ्रू हार्ट की नली की डाई डाल के उसकी जांच की जाती है, और उससे पता चलता है कि हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है, और है तो कितने परसेंट है, और उस परसेंटेज के हिसाब से आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्लान आउट होता है। ये एक अप्रोच होता है। जी दूसरा अप्रोच होता है जब पेशेंट डायरेक्टली आपके पास में चेस्ट पेन लेके आता है, जो कि ईसीजी पे पता चलता है कि हार्ट अटैक है, मैसिव और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं ईसीजी में जो कि आपको हार्ट अटैक इंगित करती है। उस केस में पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायरेक्ट एंजियोग्राफी करके उसको आगे ट्रीट किया जाता है। जी, और अगर सीवियर अटैक हुआ या फिर हार्ट की सीवियर डिजीज़ हुई तो उसके बाद में किस तरह के जो होते हैं वो स्टेप्स लिए जाते हैं, और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, बायो जो बोलते हैं कि जो पूरी एक हार्ट की जो सर्जरी रहती है उसके बारे में भी हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको बताइएगा। तो विवेक जी, इसमें ऐसा रहता है, अगर पेशेंट्स को मैसिव कार्डियक हार्ट अटैक है लाइक एंटीरियर वॉल एमआई और मेजर अटैक जिसको हम बोलते हैं, उस केस में डायरेक्ट अप्रोच यही रहता है कि आप एंजियोग्राफी करके जो मेन आर्टरी है, जो मेन वेसल्स है, जो कल्प्रिट वेसल्स है, उसको आप एंजियोप्लास्टी मींस स्टेंट लगाना जिसको बोलते हैं, जी स्टेंट लगा के वो आर्टरी ओपन की जाए, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। और वो प्रोसीजर विद इन 24 आवर्स, पेन स्टार्ट होने से लेके विद इन 24 आवर्स होता है। द मैक्सिमम बेनिफिट जो है उसका वो 120 मिनट में है। आपका पेन स्टार्ट होने से लेके फर्स्ट मेडिकल कांटेक्ट से आपका जो टाइम पीरियड है वो 120 मिनट में आप अगर आर्टरी ओपन करते हैं तो वो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। यू कैन साल्वेज मायोकार्डियम, और पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट
उस समय रहता है। जी। और दूसरी जो बात होती है, जो ओपन हार्ट सर्जरी रहती है कि जिसके अंदर जो नलियाँ ब्लॉक होती है उसको बदल के नई नलियाँ डाली जाती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक मित्रों को बताइएगा। हुँ। स्पेशली एक कंडीशंस होती है जिसको बोलते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज़। हार्ट की जस्ट अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट में टोटल 3 नलियाँ मेन वेसल्स होती है, 3 मेन आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरीज़ जिसको बोलते हैं। उन 3 आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज तीनों में एक साथ होता है और साथ में पेशेंट को डायबिटीज़ है, हार्ट का पंपिंग कम है, उस कंडीशंस में या लेफ्ट मेन डिजीज़ जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पे आर्टरी शुरू होती है, उसी नली में ब्लॉक हो, तो बाईपास सर्जरी फर्स्ट इंडिकेशन होता है। और उस केस में बाईपास सर्जरी में आपके जो जो रास्ता है आपका, वो जो पैर या हाथ की नली, और अभी अपने अहमदाबाद में कुछ सर्जन जो है वो चेस्ट के अंदर की दोनों नली यूज करके अंदर की अंदर अपना बाईपास कर देते हैं, जिससे आपका रास्ता जो है, जो ब्लॉक वाला रास्ता है, वो बाईपास हो जाता है, जो अपने अंदर की नलियाँ यूज़ करके। और एक तरीके से मेजर ऑपरेशन होता है, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होता है। और इसमें आईसीयू स्टे आप 3 टू 4 डेज़ आईसीयू स्टे और 7-8 डेज़ हॉस्पिटल स्टे रहने की रहता ही है। जी, तो ये तो अभी तो अगर साइंस को देखा जाए डॉक्टर मुकेश, तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। पहले अगर देखा जाए तो ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत बड़ी वो हुआ करती थी, और आज के दिन में देखा जाए तो अहमदाबाद जैसी सिटी में ही बहुत सारी ओपन हार्ट सर्जरियाँ होती रहती है और बहुत सारे पेशेंट क्योर भी हो रहे हैं। तो इसका श्रेय तो आप डॉक्टर्स लोगों को भी जाता है कि आपने अच्छी तरह से इतनी ट्रीटमेंट की है। अगर ये हार्ट के डिसीज़ में अगर हो गया कि जैसे बाईपास हो गया, तो उसके बाद में पेशेंट को क्या-क्या ध्यान रखनी चीज़ें होती है और किस तरह से उनकी लाइफ फिर आगे पास करनी होती है? हुँ। तो पोस्ट केयर जो जी। पूछ रहे हैं, पोस्ट केयर बाईपास या एंजियोप्लास्टी, दोनों ही केस में आपको जो एंटीप्लेटलेट है, ब्लड थिनर है, वो मेडिसिन्स आपको लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, वो भी लाइफ लॉन्ग होती है। उसमें आपके टारगेट होते हैं, जैसे एलडीएल होता है, वो आपको 50 के नीचे, जो उसका मार्क है 50, जो उसका फिगर है, उसके नीचे होना चाहिए। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ब्लॉकेज है, जो आपने बाईपास के थ्रू निकाल दिए या एंजियोप्लास्टी के थ्रू आपने उसको ठीक कर दिया, वो फर्दर आपका प्रोग्रेस नहीं करे, वो नए ब्लॉकेज डेवलप नहीं हो, या ग्राफ्ट के अंदर या स्टेंट के अंदर री-स्टेनोसिस और या री-ब्लॉकेज ना हो। इसके लिए आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके लिए एग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। आप नियमित एक्सरसाइज़ करें, आप नियमित दवाई लें, आप खाने-पीने में अपना जो ऑयली और जो फ्राइड फूड है, वो बंद करें। इस तरीके की लाइफ़स्टाइल साथ में लाइफ लॉन्ग ड्रग थेरेपी पे पेशेंट को यूजुअली रहना पड़ता है। चीज़ें होती है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो फिर क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी जो लाइफ़स्टाइल है और जिस तरह से बोला जाता है, आप इतनी अच्छी तरह से हार्ट की जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की हुई है। इसके प्रिकॉशन बेसिस पे क्या हम ले सकते हैं कि जिसके हिसाब से हार्ट की डिज़ीज़ को हम रोक पाएँ? हुँ, वही बेसिकली हाँ, हार्ट डिजीज़ को रोकने का जो प्रामाणिक उपचार है, जो एक आप अपन कह सकते हैं जो अपना एक साइंटिफिक अप्रोच है, वो यही हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें। उसके अंतर्गत आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित चेक कराएँ, डायबिटीज़ नियमित चेक कराएँ, ब्लड शुगर नियमित चेक कराएँ। अगर आपको ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो उसको एक बेहतर ड्रग थेरेपी से, बेहतर अप्रोच से आप उसको ट्रीट करें, उसको मेंटेन करें, एक्सरसाइज़ नियमित करें। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज फॉर 5 days is usually recommended by अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सो ये एक्सरसाइज जो है आप कंटिन्यू करें। एडिक्शंस, कोई भी एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके अलावा जो ड्रग थेरेपी है, जो आपके फिजिशियन या आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनके साथ में नियमित कंसल्टेशन रखें। इससे आपका आपकी मेडिसिन जो है कंटिन्यूअस, जो भी मॉडिफिकेशन हो वो टाइम रहते हुए हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो सके, टाइमली उनका जो भी सिम्पटम्स है उनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके जो भी डिजीज का प्रोग्रेशन है वो उस टाइम रहते हुए उसको चेक किया जा सके।
तो इस तरीके से आपका जो वेट है, जो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ रिस्क फैक्टर, आप अपना वेट रिड्यूस करें, वेट कम करें, उसके ऊपर अपनी जो भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड मॉडिफ़िकेशंस हैं, एक्सरसाइज़ है, डाइट है, उस सब पे ध्यान देके अपना वेट भी कम करें। तो ये सारे मेजर मेजर फैक्टर्स हैं, जो आपको एज़ ए प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट मीन्स कि आपकी डिज़ीज़ आए नहीं, और अगर आ चुकी है, तो भी आपको ये सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब आपका फर्दर कोई नया ब्लॉकेज या फर्दर कोरोनरी आर्टरी डिजीज ना हो, या वो चेक हो, इसके लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत रहती है। उन सभी चीजों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर मुकेश, देखा जाए तो अभी की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत सारी वो कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले के ज़माने की बात करें डॉक्टर मुकेश, तो जब हमारा बोलते हैं कि जो रूटीन था उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो हमारा खाना भी था वो भी घर का हम प्रीफर करते थे, और दूसरी चीज़ के बाहर का खाना हम बहुत अवॉइड करते थे। आज अगर देखा जाए तो हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज हमारे लाइफ में कहीं दिख नहीं रही है, और तीसरी बात जो है डॉक्टर मुकेश, कि इसकी वजह से न सिर्फ हार्ट की डिजीज़ लेकिन बहुत सारी डिजीज़ भी हो रह सकती है। तो एक एमडी के हिसाब से आप क्या कहेंगे हमारे दर्शक मित्रों को कि किस तरह की लाइफस्टाइल हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए जिसके हिसाब से हम बहुत सारी डिसीज से बच सके? डिजीज केवल हार्ट के रिलेटेड भी नहीं है। आप समझिए कि आपका स्ट्रोक, पैरालिसिस जो है वो भी एक लाइफ, क्योंकि इसमें भी हाइपोटेंशन प्ले करता है, और ये दोनों डिजीज लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। दूसरा आपका कैंसर, जो अभी एक तरीके का वो भी एक एपिडेमिक हो चुका है अपनी कंट्री में, वो भी एक आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ इशू है। हार्ट डिजीज तो है ही है, इसके अलावा ये बहुत सारी डिजीजेस जो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो लाइफस्टाइल मेजर, हम जो हमारी सहूलियत, जो हम अपने को सहूलियत मिली इन सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, ये सभी चीजों का अपन ने, हम लोगों ने और सभी ने इस तरीके से यूज किया है कि उसको अपनी लाइफस्टाइल में इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि वो अपनी लाइफस्टाइल में इल इफेक्ट देने लग गई है। दैट मीन्स कि उसका जो बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा इल इफेक्ट जो अपनी लाइफस्टाइल में, लाइक अपनी एक लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, एक्सरसाइज बहुत कम करने लग गए। आपको एक बाहर भी कहीं जाना होता है वेजिटेबल लेने, या कहीं आप मिल्क लेने, तो आप यूजली अपना व्हीकल प्रेफर करते हैं, या आपको कहीं पर भी जो बाहर की खाने फूड है, वो स्ट्रीट फूड या जो फास्ट फूड है वो ज्यादा चलन में है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और लोगों को उसमें ज्यादा रुचि है। तो ये सब चीजें जो है वो एक लाइफस्टाइल, न्यू लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुकी है, और वो धीरे 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 स्लोली, ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है, जो आपको स्लोली स्लोली एज ए धीरे 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 आपकी बॉडी में वो लाइफस्टाइल की वजह से चेंजेस आते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आते हैं, आपकी ब्रेन की नलियों में भी ब्लॉकेज आते हैं। इन्हीं इन्हीं टिन फूड या पैक्ड फूड और ये सब चीज़ों की वजह से कई बार, या पॉल्यूशन की वजह से भी कई बार, जो कि मेन रीज़न होता है कैंसर जैसी डिज़ीज़ के लिए, तो वो भी आपका एक लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड इश्यू है, आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड एक इश्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छी जानकारी तो ये हमें बताई, और बहुत सारी चीज़ों को आपने जिस तरह के उजागर किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शक मित्रों को इतनी बहुत सारी जानकारी देने के लिए। દર્શક મિત્રો, આ હતા ડૉક્ટર મુકેશ કે જેને આપણને હૃદયરોગ વિશે ઘણી બધી માહિતી આપી, સાથે સાથે કહી શકાય કે હૃદયરોગની અંદર કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે, કેવી રીતે સર્જરી એટલે કે ઓપરેશન કરવામાં આવે છે, અને કેવી રીતે નળીઓ બદલવી હોય કે નળીઓની અંદર કહી શકાય કે સ્ટેન્ડ મૂકવા છે, ઘણી બધી બાબતોની જાણકારી આજે ડૉક્ટર મુકેશે આપણને આપી છે। કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમે એક પ્રયત્ન લઈને આવ્યા છે કે આપ અને આપનો પરિવાર સ્વસ્થ રહો। આજે જે હૃદયની વાત છે ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે ઘરનું ખાવાનું પ્રિફર કરો, બને ત્યાં સુધી બહારનું ખાવાનું એવોઇડ કરો। સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે થોડી ઘણી એક્સરસાઇઝ દિવસમાં વધારે નહીં તો 10, 15, 20 મિનિટ માટે એક્સરસાઇઝ કરો, જેના કારણે આપનું મન
અને આપનું તન એટલે કે શરીર બંને સારું રહે. સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે બહારનો જે પીણાઓ આવે છે એ પીણાઓ પણ એવોઇડ કરવા જોઈએ. અને જો આપ વ્યસન કરતા હોય તો વ્યસનમાંથી પણ મુક્તિ મેળવવી જરૂર છે. ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે જે સામાન્ય બાબતો છે ને જે બાબતોને લઈને આપણે જ્યારે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ કહી શકાય છે કે આપણે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારી કામગીરી કરી શકીએ છીએ. તો કાલે મળીશું એક નવા વિષય સાથે, એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર.